हाय आकाश भाई, मुझे ना बहुत दिक्कतें होती हैं ये समझने में कि यार हाँ आज के ज़माने में इतने ट्रेंड चल रहे हैं, सब कोई बात कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल। yeah, yeah. और बज़वर्ड भी बन चुका है एक, है ना? Now, हर yes, जगह पे ट्रेंड हो रहा है true. और बड़े-बड़े पॉडकास्टर्स इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल? व्हाट Sure. एग्जैक्टली इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड Yeah. व्हाई शुड अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू एंड मी, हम्म, व्हाई शुड वी केयर अबाउट इट एट ऑल? क्यों हम्म, परवाह करें हम इसकी? हम्म। देखो 6 साल पहले मैं भी यही चीज सोच रहा था कि मैं क्या बिजनेस करूं, राइट। और फिर जब मेरे दिमाग में ये चीज आई कि रोज हम बैठ के ऐसे बातें करते हैं कि देश में पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली में AQI 300 है, 600 है, 500 है, राइट। वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट इट। when the plane lands we see, oh, we are not able to see anything, but after 20 minutes जब हम कैब में बैठ जाते हैं हम सब भूल जाते हैं, राइट, because now we've landed। तो ये सब बातें चल रही थी और फिर when I researched about it कि globally क्या चल रहा है, is there a solution to this? So you have multiple solutions to this, right? One of those solutions which possibly can be the largest solution is electric mobility. Solar is another, right? Now why electric mobility matters और ये क्या है, क्यों लेनी है, लेनी भी है नहीं लेनी है। सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक से क्या हो रहा है कि आप जो इंजन चलाते हो नॉर्मल गाड़ियों में, आईसी इंजन कार्स में, उसमें से जो पोल्यूशन निकलता है वही हमारी एयर को पोल्यूट कर रहा है। इलेक्ट्रिक में जीरो पोल्यूशन। So when the car is running on the road or a vehicle is running on the road or a scooter is running on the road, there's no pollution. And the stats say that 66% of all the pollution which is happening is because of mobility. 66%? Yeah, all the pollution is mobility led. इसमें कॉमर्शियल पैसेंजर सब आ गए, है ना? राइट। तो अब अगर हम इतना सारा पोल्यूशन मोबिलिटी के थ्रू कर रहे हैं तो क्या उसको आईसी इंजन को इलेक्ट्रिक पे ले जाके उसको कम करा जा सकता है? यस। बट बहुत सारे और नुआंसेस हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, क्योंकि आप चार्ज तो इलेक्ट्रिसिटी से मेरा वही पूछना था कि आर्गुमेंट तो यही है। Yes, that's the right argument, to be very frank, where the charging is happening via electricity, and that electricity is still coming from coal. But I think that's another problem to solve, right? Which is that how to convert our electricity source to renewable, which is also another mission which is happening, right? So now again another data point that about 42% of all our electricity is already renewable, right, in the country, and there's plan to take it to 100% as per our goals of net zero by 2050 or 2070, right? तो वो goals हैं। प्लस अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें सोलर की हो रही हैं, people are putting solar rooftops, we are trying to put solar solar Charging panels stations. along all our hubs so that all the charging happens via sustainability. तो effort है, long journey है, but the effort is in the right direction is how I put it. ये जो 42% अभी हुआ है रिन्यूएबल सोर्सेस से, कितने टाइम में हम यहाँ तक पहुंचे? This has happened over the last 20-25 years. Since the focus. Yeah. Government is big, and I think especially the current Prime Minister Modi's government is very aggressive on sustainability, net zero. अभी आपने देखा इतनी बातें हो रही थी, दुबई में बारिशें आ गई हैं, सब बह रहे हैं, right? All of this is realization that whatever we are doing to the planet is not right, and now we need to take those steps. अगर हमने वो steps नहीं लिए तो शायद आगे की जनरेशन के लिए बहुत लेट हो जाएगा। So we are the first generation who seeing such a climate change happen. इससे पहले नहीं था, जब हम लोग kids थे, we didn't see such crazy weather, we didn't see the change of climate, we didn't see summer happening early or winter happening late or rains happening at any point in time. हम लोग ये सब देख रहे हैं, and also as per stats we are the first generation which has seen that, and we are the last generation which can act on it. Why do you think we are the last? Because it will be too late otherwise. Can you elaborate more on that? See, now what is happening, the temperature is rising every year, which means that our ice bergs jo apne way, Antarctica and all, they are now melting, and the water levels are rising because the temperature is rising. What is climate change? Climate change is जो normal temperature हमारी दुनिया में होता था, वो अगर 0.5 डिग्री से भी बढ़ता है तो जो हमारा वाटर कंटेंट है वो ऊपर आ जाता है, which means there are a lot of countries and continents which are on the verge of getting submerged. सॉरी मैं वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ,
बट अगर इतनी देर तक देख लिया है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा। तो एक सिंपल सा काम कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज, क्योंकि उसका सिंपल रीजन बताता हूँ, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही लोग हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहेंगे। दिखावा है बट चलता है, तो थोड़ा दिखावे के लिए ही कर दो, और आपको रिकमेंडेशंस भी मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइबर हो, तो दोनों में ही हेल्प हो जाएगी। और कमेंट करके ये जरूर बता देना कि अभी तक का एपिसोड में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लग रही है और सबसे गंदी चीज क्या लग रही है, ताकि हम वो गलत चीजें अगले पॉडकास्ट में रिपीट ना करें। चलो पूरा वीडियो देख लो। That is the reality. It will not happen immediately, but it's a slow change, and that slow change might lead to extinction. Which is why our friend Elon Musk is building a planet, is building livable lives in Mars, right? Because he fears कि ये तो खत्म हो जाएगा. बट वो खुद तो नहीं जा पाएंगे, आपको लगता है he will be able to spend time and live there? See, I think the way technology is changing, the way evolution is happening, you cannot say anything today, man. But if given a chance to you, 10 साल पहले हम बहुत सारी चीजें नहीं देख पा रहे थे, right? Man is going to Mars. We've touched, multiple things. India is doing Chandrayaan. तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं. तो अगर आज की डेट में हम बोले कि नहीं हो पाएगा, हम उस जनरेशन के हैं ही नहीं. हम तो स्टार्टअप वाले हैं, हमें तो ये बोलना है, हो जाएगा, कर देंगे. But given a chance to you to go to Mars, yes, आप जाना चाहोगे? I'd love to check it out. स्पेस की तो राइड शुरू हो चुकी है वैसे. I know. I think Jeff Bezos were there. Yeah, Richard Branson was there. Bunch of people have tried. So yeah, all of that has started, and we at least I think would see all of this happening. Yeah, मुझे ऐसा लगता है. ट्रिप तो मारी आएंगे. कसौली जैसे ही तो है ना. Correct. Yeah, but coming back to what we were discussing. Sure. मुझे अभी भी ना और ये समझना है इसके अंदर इन डेप्थ जाके कि यार एक इंटरनल कंबशन, अगर मैं मान लो एक कार चला रहा हूँ, राइट, तो एक कार जो पेट्रोल या डीजल पे रन कर रही है वर्सेस एक कार जो इलेक्ट्रिक पे वर्क कर रही है, राइट, दोनों में कितना बड़ा डेल्टा है कॉस्ट को लेके, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बोल लो या कॉस्ट ऑफ रनिंग बोल लो, डेली बेसिस पे कितना बड़ा डेल्टा है? See, one thing is buying, right? And we can talk about cars, 3-wheelers, 2-wheelers. Correct. Today, let's take 2-wheeler क्योंकि आप उसी में ज्यादा काम करते हैं. But I'll try to cover all because this is a largest audience, right? Yeah. See, cars today, when you buy a car, the cost of the car is slightly higher. How slight? Upfront cost, because the battery, in a way, you are carrying the fuel cylinder जो आप पेट्रोल पंप है ना, वो कैरी कर रहे हो पूरे टाइम अपने साथ गाड़ी में, right? And that petrol pump will last for 6 to 8 years. आपको सिर्फ एक प्लग पे लगाना है, रात को चार्ज करना है, वो 400-500 किलोमीटर चल जाएगा आपके लिए. इसलिए जो इनपुट कॉस्ट है आज गाड़ी की वो महंगी है फ्रॉम द पेट्रोल कार, एंड हेंस आई वोंट से कि a lot of people are quickly buying it. When it becomes comparable, which should, once technology evolves, once disruption happen, once a lot more people start buying, and we find more sources of energy rather than only lithium, which is a scarce fuel, then it might become comparable or cheaper than the fueled car, and then it's crazy, then तो fuel is gone, and that's the future. but उसके लिए आज ये सारी चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी. That's about car. Running cost of a car, obviously. So running cost में क्या होता है कि आप चार्ज करते हो, एक गाड़ी में जो बैटरी होती है वो 25 पैसा पर किलोमीटर पे चलती है. Same for 2-wheelers also. Roughly 25 पैसा per kilometer versus in a 2-wheeler it's 2.5 rupees per kilometer on a petrol scooter. और Activa, when you buy Activa आज की डेट में करीब 1 लाख का आता है. आज की डेट में Ather, Ola or whichever scooters that you buy, they are between the price point of 1 lakh to 1,10,000 or sometimes 90,000 almost also. Similar. So scooters में that price parity has already happened. With the scale ज़्यादा है scooters में. India is a 80% 2-wheeler market, right? And the cost of making a scooter versus a car is much lesser. Right. So scooter में buying cost same हो गई है. Running cost is 25 paisa versus 2.5 kilometers. 2.5 rupees per kilometer. So it makes a lot of sense for you to switch to electric. But challenges ये हैं कि भाई चार्ज कहाँ करूँगा, बैटरी खत्म हो गई तो क्या है. These are the initial challenges which with time should go away. Yeah. Got it. आपका जो बिजनेस है, you run a delivery fleet, yes. right?
अब उस डिलीवरी फ्लीट में एवरी व्हीकल दैट यू यूज इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, Yeah. राइट? अब मुझे 100%. पहले तो ये समझना है कि व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू गो विद दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल रूट वर्सेस द पीपल हु आर डूइंग इट द सिमिलर कंपटीशन में जो आपके लोग हैं वो इस रूट पे तो नहीं है अभी तक। Correct. They're not. आपने स्पेसिफिकली यही पर्टिकुलर एरिया क्यों चूज किया जाने के लिए? क्या आपको लगा कि यार यही क्रैक कर पाऊंगा मैं? क्या लॉजिस्टिक्स में कॉस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है या आर देयर अदर बेंचमार्क्स आल्सो? या देखो मतलब एज अ फाउंडर जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, आप एक बहुत ही पाइप ड्रीम होता है, राइट? कि वो पाइप के अंदर से एक दूर कहीं रोशनी जलती हुई दिखती है कि शायद वो रोशनी ना एक दिन मेरे लिए जलेगी। हमने वो रोशनी इलेक्ट्रिक में देखी। क्यों? क्योंकि जो मिशन था वो बहुत आई वुड से प्रिस्टीन था कि यार देश में पोल्यूशन कम कर देंगे, जितना भी एफर्ट करेंगे कहीं तो पहुंचेंगे। और अगर इतने सारे पंडित्स, इतने सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज अ लार्ज सोल्यूशन टू सॉल्व दिस लार्ज प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन, तो एफर्ट मार के हार भी गए तो बुरा नहीं लगेगा। हाँ यार, एफर्ट वाज इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है? दैट्स व्हाई माय बिजनेस व्हेन आई स्टार्टेड ओनली इन दिस क्लीन इम्पैक्ट स्पेस। तो मैंने पेट्रोल तो देखा ही नहीं कभी, नॉट अ सिंगल बाइक, नॉट अ सिंगल व्हीकल, not even a liter of fuel is what we have got when we started this business into the business, right? क्योंकि मिशन ही इलेक्ट्रिफिकेशन का था। अब इलेक्ट्रिफिकेशन करते करते उसमें जब हम घुसे तो हमने कहा कि 2-3 चीजें हो सकती हैं जो सॉल्व करी जा सकती हैं। या तो आप और हम जो मूवमेंट करते हैं उसको इलेक्ट्रीफाई कर दें, या फिर मेट्रो से आप उतरते हो, ऑफिस जाना होता है, कैब ले रहे हो, उसको इलेक्ट्रीफाई कर दें, या फिर जो डिलीवरीज हो रही हैं उसको इलेक्ट्रीफाई कर दें, राइट? अब जब हमने ये तीनों चीजें ट्राई करी, टू बी वेरी फ्रैंक, इनिशियली हमने सब ट्राई किया कि चलो लोगों को भी बिठा के देखते हैं। आप ऑफिस में जाते हो, आपको भी एक स्कूटर रेंट पे दे देते हैं, एक डिलीवरी बॉय को भी लेके आते हैं, Amazon की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने सब कुछ ट्राई किया, एज यू नो, क्योंकि ड्रीम वो पाइप ड्रीम में ना लाइट वो इलेक्ट्रिक में चल रही थी, तो सब ट्राई करेंगे, पता नहीं क्या चलेगा। व्हाई ओनली डिलीवरी? तो नहीं, डिलीवरी नहीं थी, मोबिलिटी थी पहले। स्टार्ट मोबिलिटी से किया, फिर सब्सक्रिप्शन किया, फिर बेचने की भी कोशिश करी स्कूटर्स। मोबिलिटी में ही क्यों गए सबसे पहले? सी बिकॉज मैं एक प्रोडक्ट वाला इंजीनियर नहीं हूँ, मैंने मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। और मैंने अपनी लाइफ में मार्केटिंग, प्रोडक्ट, टेक, ये 3 ही चीजें सीखी है। तो मैं कुछ वो ऐसा नहीं करना चाहता था जो मुझे आता ही नहीं, राइट? व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ वेंचर, एटलीस्ट इट शुड रिलेट टू यू। व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, if you have 10 steps to cover and you are +3 +4, that's still okay. But if you're starting from zero, your journey will be that much longer, right? तो अगर मैं व्हीकल बनाने लग जाता, मेरी जर्नी शायद बहुत लंबी होती, और उसमें R&D, you would have need to spend time in labs where you have actually made batteries, made vehicles, made motors, broken them. मैंने ये सब नहीं किया था, मैं सॉफ्टवेयर वाला बंदा था। मैंने इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर्स बनाए, मैंने MBA में मार्केटिंग करी, लोगों को दौड़ाया, काम कराया, ऑर्गेनाइज करा, तो मेरे स्किल सेट्स को यूज करना था इन द राइट डायरेक्शन। तो हमने कहा एक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस बनाएंगे हम, विच इज ईदर मेकिंग पीपल मूव, मेकिंग गुड्स मूव, और मेकिंग पीपल सब्सक्राइब टू अ प्रोडक्ट विच वी डोंट मेक। अच्छा, हमें नहीं आता प्रोडक्ट बनाना। Which product could be? It is a vehicle. It is a vehicle. चाहे वो गाड़ी हो चाहे स्कूटर हो, बट इलेक्ट्रिक होगा। समझ गया। आप सब्सक्राइब कर लोगे, हम खरीदेंगे अच्छे बंदे से जो बना रहा है। A good OEM will manufacture for us. हमारा काम है उसको ढंग से नेगोशिएट करके, टेस्ट करके लेके आना, जो कि हम कर सकते हैं। एक टेक बनाना सो दैट आप उसको अक्वायर कर सको, यूज कर सको। पेपर यूज मॉडल हो, पेपर मंथ मॉडल हो, पेपर डिलीवरी मॉडल, बट वी विल बिल्ड अ टेक स्टैक, क्योंकि वही हमें आता है। हमने मतलब इन माय एंटायर जर्नी आई हैव डन ओनली टेक मार्केटिंग, एज आई सेड, राइट? तो जो आता है उसमें करते हैं, और फिर अगर गलत किया तो ठीक कर लेंगे, बट उसी राह पे चलते रहेंगे। तो इन राहों पे चलते चलते सारी चीजें ट्राई करते करते हम जब डिलीवरी करने लगे यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दैट वाज अबाउट 1.5-2 years लेटर देन स्टार्टिंग द बिजनेस। तो पहले मोबिलिटी का ही ड्रीम था, बिकॉज लाइफ में सिर्फ B2C किया था, B2B नहीं किया था मैंने। मेरे को B2B नहीं समझ में आता था, बट क्योंकि प्रॉब्लम इतनी लार्ज थी और वो ड्रीम इतना बड़ा था, तब
उसमें समझ में आया कि यार डिलीवरी तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, क्योंकि अ डिलीवरी व्हीकल राइड्स फॉर 100-150 किलोमीटर्स इन अ डे, बट अ पर्सनल व्हीकल व्हिच यू एंड आई विल ड्राइव फॉर 15-20 किलोमीटर्स, ऑफिस Right. जाएंगे, घर आ जाएंगे, राइट, शॉपिंग कर लेंगे, मूवी चले जाएंगे, 50 किलोमीटर चला लेंगे, बट यहाँ तो 150 किलोमीटर चल रहा है ना। एवरी फूड डिलीवरी पर्सन, ई कॉमर्स पर्सन इज राइडिंग अ लॉट, हेंस पोल्यूशन भी सबसे ज्यादा वही हो रहा है, तो और कमर्शियल का रिक्वायरमेंट भी पोल्यूशन सबसे ज्यादा ज्यादा है। वही है, रिक्वायरमेंट भी सबसे ज्यादा वही है, कॉस्ट सेविंग भी सबसे ज्यादा वही होगी, 25 पैसा वर्सेस 2.5 किलोमीटर। राइट। तो जब ये करने लगे तो समझ में आया यार ये तो सही चीज मिल गई, इसी पे फोकस करते हैं। सो देन द फोकस बिकेम डिलीवरी। और प्लस इसमें क्या था कि सिंस द ड्राइवर वाज आवर्स, वी यूज्ड टू फाइंड द ड्राइवर, वी यूज्ड टू ट्रेन द ड्राइवर, वी यूज्ड टू इक्विप हिज जर्नी टू मेक हिम अर्न मोर। तो यूटिलाइजेशन का जो रिस्क था व्हीकल का वो मेरे हाथ में आ गया। हालांकि अभी मैं ये नहीं कहता कि डिमांड पूरी मेरी है, डिमांड की कमी नहीं है, बट उस डिमांड को स्ट्रक्चर करना वाया डिलीवरी पार्टनर एंड यूजिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज व्हाट वी स्टार्टेड सॉल्विंग। और वहीं पे कर्मा बढ़ता गया। सिंपल भाषा में बोलूं तो जब डिलीवरी के जो लोग होते हैं, जो आप किस किस के लिए फ्लीट्स के लिए करते हो? Everyone. So every large Zomato player, हो गया, ये सब भी? every large player, चाहे फूड में Zomato, Swiggy, e-commerce, Amazon, Flipkart, Big Basket, Zepto, Blinkit, and quick commerce or grocery, then bike taxi, Uber, Rapido, then Porter, Magic Pin, Shiprocket, ONDC, whoever, Domino's, whoever is a large player and has customers and has things to deliver. Zip is their largest TV partner. Got it. That's the goal. And that's where we आपका are. अगर मैं बोलूं मोट, Yes. which is your leverage over the others, सिंपल भाषा में पहले तो लोगों को ये समझाता हूँ कि जब वो कभी ऐप से ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं, तो जो डिलीवरी का बंदा आता है बैक एंड पे, वो जो डिलीवरी का बंदा होता है, Yes. दैट इज पावर्ड बाय जिप इलेक्ट्रिक। मतलब वो आपकी फ्लीट होगी, आप ही का व्हीकल होगा, और वो डिलीवरी एंड टू एंड आप इंश्योर करोगे कि वो लोगों को पहुंच जाए जो उन्होंने सामान ऑर्डर किया है, अच्छे से पहुंच जाए, और वो जब पहुंचे तो पोल्यूशन करता हुआ ना पहुंचे, right? ये आपका मेन फोकस है। ये अभी मेरा फोकस है, बट मेरा ड्रीम क्या है इसके ऊपर? मेरा ड्रीम ये है कि जब भी आप इन कंपनी से ऑर्डर करो तो उसमें एक ऑप्शन आए, जैसे ऑप्शन आता है ना नो कटलरी, या फिर डोंट रिंग माय बेल, यूज इलेक्ट्रिक, तो ऑप्शन आए कि मुझे ग्रीन डिलीवरी चाहिए, राइट। और मैं आपसे बोलूं कि यार 5 रुपए ज्यादा दोगे? दूंगा, क्योंकि मैं भी क्लाइमेट को बचाना चाहता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ ये सारे पार्टनर्स ग्रीन टिक दे दें और कस्टमर्स चूज करना शुरू कर दें, and I think now we can do that at least in Delhi, Bangalore, but the mission is to do that globally. But why do you think people will pay more? Isn't the cost of running an electric vehicle lower than the cost of normal IC? See, to be very frank, today, क्योंकि electric vehicles are not just buying the vehicle, but you need to set the entire infrastructure around it. Charging infrastructure, swapping infrastructure, equipping the driver, right? Demand patterns, supply patterns, supply chain, right? Battery cost. समझ गया। Battery 3 साल चलती है, उसके बाद fulfillment cost of the battery. If you do the full TCO and running 150 kilometers where parts might break, a spare part requirement, all of that, if you say, I would say it's comparable, slightly better, but maybe to start the green push, because आज की डेट में supply कम है, right? We can even ask for a small buck. Got it. To save the planet. And then when it becomes better at a certain scale, then we can do it without any cost also. So it's just a thought. But overall, for the companies that are utilizing your services, are they getting benefit in the cost also? Big time. Yeah. So for them, see, आज की डेट में if you look at the entire logistics landscape also, let me pull that out. There are about 2 million delivery people on roads riding petrol vehicles and delivering goods for all these companies, right? But that's a finite number. The number of people who have their own petrol bike is finite. Right. Everyone wants that guy to work for them because that number is finite. तो वो जो सप्लाई क्योंकि फाइनाइट है और लोगों ने डिमांड सॉल्व कर ली है, जोमेटो के पास डिमांड की कमी नहीं है, बट सप्लाई इज फाइनाइट, एंड हेंस द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ दैट सप्लाई बिकम्स अ चैलेंज, राइट? बिकॉज आज अगर किसी और ने ज्यादा पैसे दे दिए तो सप्लाई उधर चली जाती है, सो दे हैव टू कॉन्स्टेंटली फंड द सप्लाई टू गेट दैट. व्हेन दे वर्क विद अ फ्लीट ऑपरेटर, then that supply becomes more predictable. We basically give them daily logins.
सॉरी मैं दोबारा से वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट जिनकी वजह से पॉडकास्ट पॉसिबल हो रहा है उनके बारे में बताना भी जरूरी है। मेरी ही कंपनी है इजी लीड्स, जिसका मैं फाउंडर हूँ। अगर आप अभी तक नहीं जानते तो प्लीज, अगर आप सेल्स में हो, रिक्रूटमेंट में हो, बिजनेस है खुद का, या कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, या एक इंडिपेंडेंट सोलोप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, तो इजी लीड्स आपको हेल्प कर सकता है B2B कॉन्टैक्ट नंबर्स ढूंढने में, ताकि आपकी सेल्स या रिक्रूटमेंट या मार्केटिंग आसान बन सके। तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, फ्री ट्रायल है प्रोडक्ट का, एक बार जाके एक्सप्लोर जरूर कर लेना। अब पूरा वीडियो आप देख लो। Since I have a large fleet, I have 20,000 people. I can commit. भाई मुझे मेरा बिजनेस है इन 20,000 व्हीकल्स को चलाना, isn't it? मैं छुट्टी नहीं लूंगा। करेक्ट। वो डिलीवरी पार्टनर शायद 2 महीने छुट्टी ले लेगा, 2 महीने एग्जाम दे देगा, राइट, घर चला जाएगा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हैपन विद अ डिलीवरी पार्टनर हु हैज हिज ओन बाइक, बट जिप एज अ बिजनेस विल नेवर वांट टू डू दैट, राइट। हमारे यहाँ छुट्टी होगी तो हमारा बिजनेस बैठेगा ना। माई बिजनेस इज ऑफ यूटिलाइजेशन, तो मेरे मेरिट में ये होगा कि मेरी 20,000 बाइकें डेली चले, राइट। चाहे आप बैठ के चलाओ, चाहे मैं बैठ के चलाऊं, चाहे वो डिलीवरी पार्टनर बैठ के चलाए, और जब वो घर जा रहा है उसका भाई आके चलाए। बट Zomato or a Blinkit or a Zepto or a Big Basket will get daily live logins, which makes their supply predictable, which is what a fleet operator like us do. मुझे ना ये समझना है कि एक कंपनी है, उसके पास 20,000 की फ्लीट है, which is running on पेट्रोल और डीजल, let's say, versus your fleet which is running on electric vehicles. Sure. एडवांटेज तो क्लियर कट है, जो हमें दिखता है कि यार एक तो ग्रीन है, correct, प्लस कॉस्ट सेविंग भी है। What are the challenges of running a electric vehicle fleet? Lot of them, to be very frank, yeah. Especially if you can give like top 3. बहुत सारे। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है of running an EV fleet is that आपको पता ही नहीं है क्या करना है, आपको कौन सा व्हीकल लेना है, whether that vehicle is right vehicle also or not, because it's all happening for the first time. OEMs are new, batteries are new, right, parts are new. तो ये सारी चीजें सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आपको सही सिलेक्शन ऑफ द व्हीकल एंड सही सिलेक्शन ऑफ द OEM इज द फर्स्ट क्रैक। द सेकंड क्रैक इज चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। जब हमने बिजनेस शुरू किया था, ना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, ना स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, सब कुछ हम खुद करते थे, राइट। तो ये सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई जब गाड़ी में बैटरी कम हो गई है, वो कहाँ जाएगा चार्ज करने के लिए? उसको 150-200 किलोमीटर चलना है, बैटरी चलती है 80 किलोमीटर, हाउ विल ही चार्ज? और वेदर स्वैपिंग, सो दैट इज द सेकंड चैलेंज, टू फाइंड द राइट प्लेस फॉर हिम टू डू अ स्वैप और चार्ज। द थर्ड थिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम इज, अगर बाइक खराब हो गई कौन सॉल्व करेगा? देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर। आज पेट्रोल बाइक में तो गली गली पे देयर इज अ मैकेनिक, EV देयर इज नो मैकेनिक, nobody knows, right? Yeah. So you asked me 3 challenges. There's one more challenge which I'll give you, is financing. Nobody knows about electric vehicle financing because neither banks nor NBFCs have seen the end of life of an electric vehicle. तो लोगों को पता ही नहीं कितनी रेट पे कैसे financing करेंगे, क्या depreciation होगा. That's also another challenge. So in the last 6 years, these are the challenges, and beyond more, a lot more challenges is what we've been solving to make this ecosystem work. आपने कैसे सॉल्व किए इन चारों challenges को? Let's talk about first one कि आपने सिलेक्शन ऑफ व्हीकल करनी है। Yeah. अब मान लो मेरे को आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक फ्लीट शुरू करनी है, लेट्स से, Correct. एंड यू वांट टू गेट इनटू दिस बिजनेस। Correct. और मुझे सबसे पहला चैलेंज है सॉल्व करना है सिलेक्शन ऑफ व्हीकल्स। Right. क्या करूं मैं, क्या चीजें मेन पॉइंट्स कंसीडर करूं व्हाइल बाइंग एन EV? See, if you're running a fleet business, you'll have to spend 3 years to get the answer. Right? People can't get it from you. See, I think every vehicle that you deploy, you need to learn what to test in it, right? What to check in it, what is the part which is going into it, what is the gauge of metal which is used. Like there are nuances, right? Each and everything has to be tested. वो जब तक आप करोगे नहीं ना, आपको नहीं समझ में आएगा। अब अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज आप जब तक पॉडकास्ट खुद से पहली बार ट्राई नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज सी ये कैसे करना है, कैसे करना है। पर जब आप इस सीट पे बैठोगे, तब आपका दिमाग चलना चालू होगा, और गलतियां करोगे, बट उससे सीख के फिर ही आगे बढ़ोगे। तो हमने वो गलतियां कर करके 1000 चीजों की चेकलिस्ट बना ली है कि क्या नहीं करना है, और उससे फिर फाइनल आंसर निकलता है कि अच्छा ये नहीं, चलो ये 1000 तो हो गए, अब अगले 100 शायद ये 1000 जब सॉल्व कर ले तब भी निकलेंगे, बट एटलीस्ट यू आर 1000 स्टेप्स अहेड,
इन फ्रॉम अ हजार न्यू में प्लेयर। इन हजार में कोई 2-3 है टॉप जो नहीं करने? बहुत सारी चीजें यार, बैटरी लाइफ, What should be वारंटी, the minimum battery वारंटी, life? इट शुड बी 3 years, इट शुड बी 1500 साइकिल्स। अच्छा। जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे व्हीकल्स की बैटरीज ब्लास्ट हो रही थी, राइट? हमें वो पहले 2 महीने में पता था, because there's a chemistry which takes, you know, which is prone to heat and then fire. And in our kind of application, जहाँ पे रन इतना ज्यादा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग डेली हो रही है, you can't rely on that technology even when if it is built by the best player. तो we learned very early on कि NMC नहीं करेंगे यार, हमने करा ही नहीं कभी NMC. NMC is a technology. अच्छा। technicalities बहुत सारी हैं, but NMC is a technology which is fast charging and little more compact, suited, but we never adopted it. So ये सब चीजें ट्राई करेंगे, फेल करेंगे, तब डायरेक्शन मिलेगा. For everything that I talked about, all these challenges, there are like multiple things that we have tried, failed, and then retried, and then failed, and then found a direction, which is, I would say, the best moat of Zip. कि भाई Zip ने वो सब कर लिया जो और लोग अब कोशिश करेंगे ट्राई. Right. So you're already ahead of And them. those are nuances, right? वो मतलब इवन किस बंदे को हायर करना है वो भी एक नुआंस है, किस मैकेनिक को कैसे ट्रेन करना है वो भी एक नुआंस है, राइट? किस व्हीकल को कैसे पेंट कराना है, कौन सा हेलमेट लेना है, हर चीज में एक नुआंस है. तो आपको वो समझ में नहीं आएगा जब तक आप 2-3 साल नहीं लगाओगे बिजनेस को बनाने. दैट्स माय आंसर. एक ओनर के लिए, फ्लीट ओनर के लिए तो मुझे समझ में आ गया Correct. कि देयर आर मोर इन डेप्थ Yes. क्वेश्चंस दैट यू नीड टू एड्रेस Correct. व्हाइल बिल्डिंग इट. Correct. फॉर अ नॉर्मल पर्सन, हाँ. जो रिटेल है, जो आम जनता है, जिसको बिल्कुल. अपने पर्सनल यूज के लिए ईवी खरीदना है, करेक्ट. बेसिस योर एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग दिस फ्लीट, यू नो इन डेप्थ अबाउट ईवी. ईवी के अंदर मुझे 2 या 3 ऐसी मेन क्रिटिकल चीजें Sure. बताओ जो मुझे कंसिडर करनी चाहिए व्हाइल बाइंग अ इलेक्ट्रिक व्हीकल एज अ नॉर्मल यूज. यू आर टॉकिंग अबाउट व्हिच व्हीकल? 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler? 2-wheeler की टॉकिंग बात अबाउट करते हैं. 2-wheeler. हाँ. देखो, एज अ B2C यूजर you need to first see कि आपका रन कितना है. How much you typically want to use this vehicle? Is this your primary vehicle or is this a secondary vehicle? Is this a vehicle that you're buying for your kid? Right? Multiple again considerations will come when you are selecting the vehicle. So if you're buying a vehicle which you want to use daily, then you need to go for ruggedness, a good brand, right? You need to check the brand and the capability of the brand to service you, right? Because if you're buying it from any Tom, Dick and Harry, who's not even a known brand name, then you might make a mistake because they will not be able to service you. क्योंकि आप as a B2C user, चाहे आप 50,000 का प्रोडक्ट लो, चाहे आप लाख रुपए का प्रोडक्ट लो, you do not want to be a person who would want to get stuck with this vehicle after an year of running it. क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ब्यूटी ये है कि पहले 6 महीने कुछ नहीं पता. It's like a toy. You charge the toy and it runs. It's almost like a mobile phone also. Mobile phone पहले 6-8 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. 1.5 साल बाद बैटरी डिग्रेडेशन, स्लो होना, राइट, पार्ट्स निकलना, ये सारी चीजें चालू हो जाती हैं. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी यही है. आई वुड से दैट यू प्रेफर अ ब्रांड एंड देयर प्रॉमिस, राइट? बिकॉज इफ द ब्रांड इज प्रॉमिसिंग समथिंग, होपफुली in 90% of the cases they would want to deliver on it, right? And then you customize that brand with your requirement. कि यार मेरे को 150 किलोमीटर वाला स्कूटर तो चाहिए, you know, I want to give it to my kid, so why I need such a large vehicle? I might need a small vehicle, right? It's only for the city run, so I might want to go for an 80 kilometer single battery, 2 kilowatt battery or 3 kilowatt battery or 4 kilowatt battery, multiple battery types, right? But obviously whenever you're buying an electronic product, you need to be sure about the warranty. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी वारंटी मिल रही है, राइट? और वारंटी का आपको एक उसको गूगल पे सर्च भी करना चाहिए कि व्हाट इज द कस्टमर रिस्पॉन्स ऑन द वारंटी साइकिल्स, वेदर द OEM, वेदर इफ इट्स अ ब्रांड ऑल्सो और नॉट, वेदर द OEM is credible enough to, you know, put their name against the warranty that they have committed. जैसे हम लेते हैं Amazon पे, हम खरीदते हैं, हम पहले रिव्यूज पढ़ते हैं, हम स्टार्स देखते हैं, हम उसकी प्राइस देखते हैं, हम 3-4 ब्रांड देखते हैं और फिर हम सिलेक्शन कर लेते हैं. अगर किसी ने लिया है तो उससे बात भी करके पूछ लेते हैं, यार तेरा एक्सपीरियंस कैसा है. दैट इज व्हाट आई वुड वांट यू टू डू इफ यू आर गोइंग अहेड विद लाइक. हमने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर ली कि सक्सेसफुल क्यों होगा ये, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं इसके अंदर. आई एम श्योर व्हाइल देयर आर अपॉर्चुनिटीज, फेलियर भी होते हैं, राइट? आपको क्या लगता है कि
क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेल हो सकते हैं इंडिया में? इंडिया बोल लो या बाहर बोल लो, एंड अगर होंगे तो कोई स्पेसिफिक 2 या 3 रीजन है आपको लगता है कि उसकी वजह से ही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे? सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नाउ एट अ प्लेस कि ये फेल तो नहीं होंगे. अच्छा. राइट, ये इवॉल्व होंगे. राइट, सो आई वुड से दैट whether it's going to be a Windows or a Mac or a Android or an Apple, right, that evolution will keep happening, but the nuance of using the electric vehicle is to move away from fuel which is a scarce resource. तो fuel का एक alternative तो हमें चाहिए आज नहीं तो कल, because one, it is a scarce resource. Second, the way that the fuel prices have increased, it becomes unsustainable for a lot of economies which don't own oil today, right? Like us, we don't own oil. We just import, right? So you need an alternative. Now, that alternative is electric, but within electric, there are multiple things. Within electric, there is a lithium ion also. There's a sodium also. There's an aluminum also. There's a hydrogen also. There's many other things which might be happening in labs. But the source of all of these is put a plug, charge it, go to a hydrogen pump, charge it, and then it will give you, that run that you're looking for without the oil dependence. So that has to happen. Now, which one of these will become mainstay or coexist? It might be that a truck will run on hydrogen, but a two-wheeler will run on lithium or sodium. Right. So multiple chemistries will exist, but now it's high time for us to find an alternative because of the climate change, which is real, that we spoke about. आपने स्टार्टिंग में ना बोला था that you love marketing, that is your core idea or thesis that you live by. Yeah. And I'm sure marketing के अंदर आप content भी create करते हो खुद से. Yeah. बहुत टाइम स्पेंड करते हो इसके ऊपर, right? While running this EV fleet, specifically this particular business, which kind of marketing hacks did you use to grow your business? Great one. See, marketing मेरे को personally बहुत पसंद था. मतलब तुम मानोगे नहीं, बचपन में when I was a kid I used to make logos of various brands कि ये मेरी brand होगी कभी आगे जाके. मैं अलग अलग logos बना के रखता था, brand name सोचा करता था, tagline सोचा करता था. Entice करता था मुझे marketing. Even today I love to study about the swoosh or the cut apple and all of that कि ये नई नई चीजें क्या कर रहे हैं. So that entices me. And when Zip came into the picture, so it's something which is a very personal story to me. तो हम लोग B2B business में थे और मेरे को हमेशा B2C पसंद था. राइट, जब मैं पिवट कर गया B2B में, मैंने कहा यार मार्केटिंग तो कुछ है ही नहीं B2B में. ये तो हमारे कस्टमर्स सारे सेट हैं, हमारे मतलब सप्लाई चेन का काम कर रहे हैं, हम तो बैक एंड का काम कर रहे हैं, तो हमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है. मैं ऐड क्यों बनाऊंगा, क्यों बताऊंगा, जब मेरी एनीवेज बिजनेस नीड्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, आई डू नॉट नीड टू मेक एन एड. राइट. बट फिर एक चीज मतलब क्या होता था मुझे, मैं जब मेरे को ना बीच में एक ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी दैट मैं हमेशा रोड्स को देखा करता था क्योंकि हमारे व्हीकल्स चलते थे, और उन व्हीकल्स पे ना हम पहले क्या होते थे, ब्लैक स्कूटर्स लेते थे और उस पे ग्रीन कलर का स्टिकर लगा देते थे. 2 साइड में लगाते थे, 2 फ्रंट में लगाते थे. तो तब हमारे पास 1000-2000 व्हीकल्स थे और मैं कभी छत पे हूँ, कभी बालकनी में हूँ, ऑफिस से नीचे देख रहा हूँ, सड़क पे ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बस स्कूटर्स देखता रहता था कि ये हमारा है, हमारा है, हमारा है. सारे स्कूटर्स मुझे दूर से हमारे लगते थे, बट पास जाके अरे यार ये तो जिप नहीं है, ये तो गलत मेरे को, क्योंकि शायद आई गॉट कलर ब्लाइंडेड, एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग जिप टू मी. हो जाता है ना, मतलब यू गेट मैड. I mean, I also wrote about it that I got obsessed. It was almost like an OCD for me, right? And searching for that green. So एक दिन ऐसे ही था. It was a rainy day, and I think it was a holiday, Saturday or Sunday. I was sitting in the balcony, and I was just counting. और ये मैं करता ही रहता था. मैं काउंट करता था कि कितने स्कूटर बाद अगला जिप आएगा, वो हरा दिखेगा, राइट? बालकनी से, मेरी बालकनी से दिखती है रोड, तो वो आता था. हर 15वां स्कूटर ग्रीन होता था. फिर कभी मिस कर दिया तो यार शिट, वो भी तो ग्रीन था, बस मिस हो गया. फिर मैंने उस दिन सोचा कि इसको पूरा ग्रीन कर देते हैं, पूरा हरा कर दो इसको. क्यों, क्या मतलब इतना क्या टेंशन लोगों क्यों लगा रहे हैं उसको, पूरा ग्रीन पेंट करने का खर्चा है ना, लगाते हैं. तो मैंने उस दिन पूरी मार्केटिंग टीम सबको हिला दिया मैंने ऑफिस में.
छुट्टी का दिन था बट कॉल्स चल रही हैं, भैया ये हरा करना है, ये सब नहीं चलेगा, मेरा ओसीडी है, मेरे को ये ग्रीन दिखे दूर से हाँ। दिख जाएगा। तो ये हुआ कि भाई इसको ग्रीन करते हैं। फिर अगले दिन मैंने कहा भैया मुझे कल वेंडर्स चाहिए जो एग्जिस्टिंग 2000 स्कूटर्स को ब्लैक को हरा कर दे और सारे ओईएम्स को ऑफिस में बुलाओ कि हम उनके साथ तभी काम करेंगे जब स्कूटर्स हरे होंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। हरे स्कूटर पे व्हाइट लोगो अच्छा दिखेगा क्योंकि वो चमकता हुआ दिखेगा, यही चाहिए मुझे, पहचान बन जाएगी। पहचान बन जाएगी। पहचान पता नहीं बनेगी नहीं, बट एटलीस्ट मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। दैट वाज द इंटेंट। तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ये सब, मतलब अगले दिन सारे वेंडर्स आ गए, कुछ 800,000 रुपए का कोट आया कि भाई सब में स्टिकरिंग करेंगे, पैनल्स बनाएंगे और ब्लैक के ऊपर हरे स्टिकर्स लगाएंगे, क्योंकि अभी पेंट करने में तो बहुत टाइम लगता है। स्कूटर्स को निकाल के पेंट सूखने में 10 दिन लगेंगे, चलते हुए स्कूटर्स में आप ये नहीं कर सकते, बट पकड़ पकड़ के सारे स्कूटर्स को हरा कर सकते हैं। तो हमने प्रॉपर शीट्स बनाई जिसमें एक एक पार्ट का कटआउट था, एंड देन वी एक्चुअली अपॉइंटेड अ टीम व्हिच कुड गो कॉल द राइडर एंड से कि भैया हम आ रहे हैं, तेरे 15 मिनट वेस्ट होंगे, पैसे दे देंगे बट स्कूटर को हरा करना है। और विद इन 10 डेज हमारा 2000 का फ्लीट हरा कर दिया हमने, उस पे ग्रीन लोगोज लग गए, इनफैक्ट लोगो भी कुछ ना नीचे लग गए थे। फिर मैंने क्लास लगाई कि यार ये मेरे को दिखना चाहिए, सड़क पे हरा है बट वो जिप नहीं दिख रहा है इसमें, तो यू गेट ऑब्सेस्ड विद इट, राइट। तो उसको पूरा हरा किया एंड सारे ओईएम्स ने फिर हरे स्कूटर्स करने शुरू कर दिए, चाहे कोई भी ओईएम हो। इफ दे वांट टू वर्क विद जिप दे हैव टू गिव अ ग्रीन स्कूटर विद अ जिप लोगो ऑन इट। एंड नाउ आई थिंक पीपल से कि भाई जिप दिख रहा है, हरा दिख रहा है, सड़क पे हरा अच्छा लग रहा है, तो व्हिच इज गुड, बट दैट इज द ओनली मार्केटिंग that I could do in a B2B business। अभी हमने एक और किया है, एक डिलीवरी बॉय का सॉन्ग निकाल दिया हमने। हमने कहा कुछ और फितूरी करते हैं, कुछ अलग सा करते हैं। तो हमने कहा कि डिलीवरी बॉयज हमारे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता लाइफ में। उनको बोलते हैं जा भाग, चल रख जा सामान, निकल जा, वेट कर, राइट। नाउ दे आल्सो हैव एन एंग्स्ट टू ऑल दिस, तो वी हैव काइंड ऑफ क्रिएटेड अ एंथम, डिलीवरी एंथम, अ रैप सॉन्ग। एक छोटे से आर्टिस्ट को हमने पकड़ा, उसने बहुत अच्छा हमारे नरेशन को ट्वीक किया और उसने उसको निकाला कि हम हैं भैया डिलीवरी बॉय, व्हाट अ डिलीवरी बॉय गोज थ्रू व्हाइल ही इज वर्किंग फॉर यू एंड हाउ यू कैन आल्सो काइंड ऑफ गिव बैक टू हिम अ पैट ऑन द बैक और अ टिप और अ स्माइल। दीज आर थिंग्स दैट विल मोटिवेट देम एंड मेक देम फील दैट दे आर आल्सो रिस्पेक्टेड। तो चेक आउट दैट सॉन्ग, इट्स ऑन YouTube, अच्छा लगेगा। Do you remember the song? I'm sure you do. हम हैं भैया डिलीवरी बॉय, that's the name of the song. अच्छा, right? And obviously I love it. It has got about what 200k views and stuff. अच्छा, Everyone who's watched that song has loved it. So you won't believe it's a song of 2.2 minutes, but the average view time of a person of every view of that song is 1.4 minutes, which means that there's rhythm and people are liking to see that. right. Amazing. Yeah. तो मार्केटिंग में आप बोलोगे तो सबसे मेन जो क्रिटिकल जो हेल्प किया आपको वो यही था कि ग्रीन जब हुआ, Yes. कितना मेजर फर्क पड़ गया उससे? बहुत फर्क, टैंजिबल नंबर्स हैं कुछ? मतलब I would say that I have met global leaders who thought about wanting to go with the green initiative or trying to do something in this space. They told me कि भाई हरा तो हम अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि green is now owned by you guys. So people who have billions of dollars tell us now green is your patent. So whatever we will do in some other color only. But That's do you what get we a like. patent or something like that? मतलब how do you protect? Brand is a patent, right? Brand has a trademark, Right. which nobody can use. But green anyone can use. But कर लो फिर, मतलब हमारा ही लगेगा, मतलब आप कर लोगे तो बस जिप को ही आप ऐड उन्हीं को फायदा हो रहा है, जिप को ही ऐड कर रहे हो, जिप को ही फायदा हो रहा है। बट ये सारी चीजें तो हो गई, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज की बात हो गई। मुझे ना दो चीजें आपसे और पूछनी है। Sure. पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा, ऑल्दो मुझे कुछ आंसर इसका मिल गया है, Sure. बट आर देयर एनी ट्रेंड्स हैपनिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करंटली दैट यू फील आर ऑन द राइट ट्रैक? Okay. कोई ऐसे 2-3 ट्रेंड नजर आ रहे हैं आपको जो बहुत पावरफुल ट्रेंड्स हैं? Yeah. See, बहुत बड़े ट्रेंड्स हो रहे हैं। देखो, एक तो ESG has become a big theme now. What is that? ESG is environment, social, governance, right? Which is entirely a global mandate now. So UN has SDGs, right? Which are goals, right? Which are already there, and out of them, the biggest thing is ESG, which is now picked up by every large organization, whether it's Walmart or Amazon or now the listed organizations, right? In India also, if you are listed on a BSE or NSE, you have to comply to your ESG,
compliance. Right. And there's a third party which will rate you Audit on करेंगे. your ESG audit, and if you're low, then you're accountable, right? So electric is now adding to the ESG theme for everyone. Hi, this is Nitin Bajaj. अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और क्योंकि आप एंड तक आ चुके हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना कि एपिसोड में सबसे अच्छी हाईलाइट आपके लिए क्या थी, सो दैट हम उस तरीके का हाईलाइट्स अगले पॉडकास्ट में भी रिपीट कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके ये जरूर सजेस्ट करो कि हम अपने पॉडकास्ट पे और कैसे कैसे गेस्ट को बुला सकते हैं। जब तक आप बताओगे नहीं हम उन लोगों को अप्रोच कैसे करेंगे, तो प्लीज हेल्प करो ताकि हम इस पॉडकास्ट चैनल के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सकें बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट्स लाने में। Right? And I think in a few years it will become de facto that if you're not compliant, then you might be out of business. So that's the importance, right, which is happening in this theme. And we are acting as a catalyst. क्यों? क्योंकि हम जो कार्बन बचा रहे हैं देश से, वो भी हम अपनी एक ग्लोबल एक्सचेंज से वेरीफाई करा के we are putting it on a global exchange where people can trade them. So if I am generating a lot of pollution, because the nature of my business is manufacturing, where there's dhua which is coming out of my plant every day, which means I'm not ESG compliant, they have to then buy these carbon credits from companies which are very low on carbon, rather saving negative hai kyunki wo bacha rahe hain. So to create an equilibrium, they have to buy these carbon credits to show that they care. So it's an investment. Whether you invest in your processes, रियलिटी में नहीं हो रही केयर, बट एटलीस्ट जो कार्बन न्यूट्रल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि वी आर कार्बन न्यूट्रल, correct, वी डोंट जनरेट द सरप्लस कार्बन, correct. सो द एक्सचेंज इज हेल्पिंग कंपनीज इन बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल. That's true. While they're trying to do on their own, but they cannot just quickly twist Correct. एक दिन में तो नहीं हो सकता their plant, right? भाई वो plant अगर oil से चलेगी, machine है तो वो चलेंगी ही चलेगी. True. But there's a process around it. अभी जैसे there's a large organization, what they did, they were again non-compliant because they were generating a lot of carbon. Indian outside? Indian companies. Achha. Tech company. They had huge offices, and hence those offices was generating a lot of carbon because electricity, servers, a lot of that, right? So what they did, they basically ran a campaign where they had these stoves which run on green fuel, biomass fuel के stoves. उन्होंने कम से कम लाखों स्टोव्स बांट दिए गांव में. अच्छा. एंड देन उसके कारण जो सेव हुआ है कार्बन इज व्हाट दे आर यूजिंग एज अ कार्बन क्रेडिट टू से दैट वी आर कंप्लायंट. बट ठीक है ना, इट्स नॉट रॉन्ग. ठीक है, मैं अपने बिजनेस में अपनी इलेक्ट्रिसिटी को अभी चेंज नहीं कर सकता. while that is my effort, maybe I am putting solar panels, but at the same time I am doing something right for the society which is adding to my value, which is great. That's how it is. Amazing. Yeah. किसी को आज let's say a 20-year or a 30-year person want to start Sure. something in electric vehicle category. Yeah. कोई ऐसे दो बिजनेस आइडियाज Sure. इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बात करूं अगर मैं, इट कुड बी डिलीवरी, इट कुड बी योर व्हाटएवर. Sure. कोई ऐसे दो आइडियाज अगर आप होते हो तो आप क्या स्टार्ट करते हैं? See, I think बहुत सारी चीजें अभी भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री बहुत नई है. It's now known as a sunrise industry or a buzzword. तो आज आप अगर इसमें घुसोगे ना, आपको 2 नहीं 200 बिजनेस आइडियाज मिल सकते हैं. I will tell you 2-3. One is the entire concept of recycling is new. जब बैटरीज जो खराब होंगी and that can pollute the environment, what people can do is that use those batteries, put them in a different use case like a solar station where the light is getting charged on the streets. Then that same electricity, that same cell can be used into your torch or your power bank, right? So आप multiple use cases एक बैटरी के बना के recycling का पूरा business create कर सकते हो. I know a few guys who are already doing that. आप अगर आप स्पेयर पार्ट्स में घुस जाओ, आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स आर स्कैर्स. पीपल डोंट नो कि खराब होता है तो कैसे ठीक होगा. आप रिपेयर शॉप खोल लो बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ऑलमोस्ट लाइक अ मोबाइल फोन. इट्स मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्पिंग यू अचीव व्हाटएवर यू वांट टू. तो अगर आपने वो एक एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को समझ लिया और उसमें क्या खराब होता है, क्या उसमें वो एक छोटी सी चिप खराब होती है या एक मैग्नेट खराब होता है, वो अगर आपने ठीक करना शुरू कर दिया, then that can become a big business. कितनी मोटर्स होंगी, पूरी व्हीकल इंडस्ट्री गोइंग इलेक्ट्रिक. आज से आप शुरू करो इन चीजों पे.
या फिर जो हम केमिस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, आप केमिस्ट्रीज ढूंढो, विच केमिस्ट्री which might be more sustainable beyond lithium and that can actually generate energy, right? Atomic energy को use कर सकते हो, hydrogen को use कर सकते हो, right? Multiple things can happen. You need to just be resilient and subscribe for the next 10 years. कि 10 साल मुझे ये घुस के solve करना है, हो जाएगा. Do you read books? I do some. I mean, अभी मैंने 3-4 बुक पढ़ी थी in the last couple of months. But I don't get a lot of time, to be very frank. Yeah. But do you have any recommendations? See, I think one book which I like a lot is Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. Achha. Which is from Napoleon Hill. It's again a book which is a lot on optimism, a lot on visualization, a lot on affirmation, right? And how you can possibly achieve anything in life. I love that book. Right, I think मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ. That's only one of those books that I would have read twice. But yeah, I would recommend it for people who have big dreams and they want to start now. Amazing. Yeah. बहुत मजा आया आकाश आपसे बात करके. Thank you so much. I know we have not gone in depth into the logistics side. Correct. Because वो बहुत लोगों ने ऑलरेडी आपके बारे में उनको Correct. पता है. Yeah, a lot of podcasts have happened now. आपके इतने पॉडकास्ट हो चुके हैं जिसपे लोगों ने वही चीजें आपसे पूछी. True. तो इसलिए आई थॉट कि rather than asking we should talk about electric vehicle as a concept and why people should be interested or maybe pay some heed. Correct. Towards this direction. Correct. तो बहुत मजा आया आपसे बात करके. Likewise, I had a fun chat and Thank you so enjoyed a much. lot. I hope I added some value. Absolutely. अगली गाड़ी इलेक्ट्रिक ले रहे हो नहीं ले रहे हो? इलेक्ट्रिक ही लूंगा बस अगली. Very nice. Thank you Good so to know much. that. Thank you.